السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی ڈائیوورس دورے سے حیدرآباد واپس، کروڑوں روپے بیرونی سرمایہ کاری کو یقینی بنانے کا دعویٰ۔ تلنگانہ خانساز کونسل کی 2 نشستوں پر کانگریس امیدوار بلا مقابلہ منتخب، مہیش کمار گوڑ اور بی وینکٹ نئے MLC۔ BRS وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے خوف کھانے والی جماعت نہیں، کارگزار صدر BRS KTR کا تلنگانہ بھون میں خطاب۔ مجلسی اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے لیے اقدامات میں مصروف، متعلقہ علاقوں کے پیدل دورے، تعطل شدہ کاموں کو تکمیل کرنے عہدیداروں کو دی ہدایت۔ شہر میں 2 مقامات پر آتش زدگی حادثات، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، متعلقہ پولیس نے کی ضابطے کی کارروائی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ خانساز کونسل کی 2 نشستوں پر اسمبلی زمرے کے تحت منعقد ہونے والے انتخابات میں کانگریس کے دونوں امیدواروں مہیش کمار گوڑ اور بی وینکٹ کا بلا مقابلہ انتخاب عمل میں آیا۔ اس سلسلے میں پیر کے روز کونسل کے انتخابات کے سلسلے میں پرچہ نامزدگیاں واپس لینے کے آخری روز الیکشن کمیشن نے دونوں کانگریس امیدواروں کے بلا مقابلہ انتخاب کا اعلان کیا۔ واضح ہے کہ کونسل کے ضمنی انتخابات BRS کے P راجیشور ریڈی اور کڑیم سری ہری کے اسمبلی میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد کونسل سے استعفے دینے کی وجہ سے ناگزیر ہوئے تھے، جبکہ ان انتخابات سے BRS BJP اور MIM نے اپنے آپ کو دور رکھا۔ تلنگانہ حکومت کے پروٹوکول مشیر خاص وینو گوپال نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے بیرونی ممالک کے دورے سے واپسی پر بین الاقوامی شمس آباد ایئرپورٹ پر خیر مقدم کیا۔ وینو گوپال نے وزیر اعلیٰ کو ڈائیووس میں ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کرتے ہوئے ریاست میں 40,000 کروڑ کی سرمایہ کاری کرنے کی کامیاب ترغیب دینے کے علاوہ دورے لندن اور دبئی میں حیدرآباد کو عالمی سطح کا شہر بنانے کے سلسلے میں کی جانے والی سرگرمیوں پر بھی مبارکباد پیش کی، جبکہ وینو گوپال نے وزیر اعلیٰ سے انہیں مشیر خاص مقرر کرنے پر بھی اظہار تشکر کیا۔ اتر پردیش کے شہر ایودھیا میں منعقدہ پران پرتشٹھا تقریب کا ریاستی گورنر ڈاکٹر تمل سائی سوندر راجن اور مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے نظام کالج گراؤنڈ واقع بشیر باغ میں راست ٹیلی کاسٹ دیکھا۔ واضح ہے کہ اس تقریب کا مختلف ریاستوں میں راست ٹیلی کاسٹ کا BJP اور RSS قائدین نے نظم کیا تھا۔ واضح ہے کہ ملک بھر سے کئی سیاسی قائدین کے علاوہ کئی بالی ووڈ شخصیتوں نے ایودھیا پہنچ کر اس تقریب میں شرکت کی۔
बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव की क़यादत में तेलंगाना भवन में नलगुंडा पार्लिमानी हल्के के पार्टी कायदीन और कारकुनों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए केटी रामाराव ने बताया कि बीआरएस ना तो नरेंद्र मोदी से और ना ही रेवंत रेड्डी से खौफ खाने वाली जमात का नाम है, बल्कि असम्बली इंतखाबात में कार सर्विसिंग के लिए गई हुई थी, जो पार्लिमानी इंतखाबात के लिए तैयार है और 14 पार्लिमानी हल्कों में कामयाबी हासिल करते हुए रियासत में सरह फहरिस्त होगी। उन्होंने राम के नाम पर सियासत करने पर बीजेपी पर भी तनकीद की। साबिक वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मरम्मती कामों का बहाना बनाते हुए रोज़ाना शहर और अजला में 2 घंटे बरक़ी सरबराही बंद करने की मज़म्मत करते हुए बताया कि बीआरएस ने अपने 10 साला दौर इक़्तिदार में 2 घंटे तो दूर की बात है, 2 मिनट भी बरक़ी सरबराही बंद नहीं की थी। जगदीश रेड्डी ने बताया कि कर्नाटक की तरह तेलंगाना में भी कांग्रेस हुकूमत 6 ज़मानतों पर अमल आवारी करने में नाकाम रहेगी, जिसका जवाब रियासत की आवाम पार्लिमानी इंतखाबात में देगी। నీ పాత ప్రభుత్వం రోజుల్ని సిగ్గుండాలి కదా మాట్లాడేటప్పుడు. నువ్వు పోయిన కాడ పక్కనే రైతులు క్యూ దగ్గరకు లైన్లు పెట్టి చెప్పులు పెట్టిపోతున్నారు. మొదలైంది మళ్ళీ రాజ్యం. ప్రజలు తేరుకుంటున్నారు ఇప్పుడు. అరే ఎట్లా జరిగింది పొరపాటు అని. కాలువల నీళ్లు పోయినాయి, కరెంటు పోయింది, రైతులకు మళ్ళీ చెప్పులు లైన్లో పెట్టుకునే దుస్థితి వచ్చింది రోడ్ల బస్తాల కొరకు. అప్పుడే మేము ఏదో హామీ నెరవేర్చినాం అసలు నువ్వు మొదలు పెట్టలే. ఇంకా రైతు బంధు నీవు నీ ముఖ్యమంత్రితో సహా డేట్లే చెప్పారు. ఇంక మేము అడగడం లేదు, రైతులే మాట్లాడుతున్నారు. రైతులు మాకు చేస్తున్నారు ఫిర్యాదు. కానీ రోజు ఎదురు చూస్తున్నాం. సెల్ ఫోన్స్ అప్పుడైతే మేము రైతు బంధు అని ఆశపడుతున్నాం. చూస్తే ఎక్కడెక్కడో యాడ్స్ వస్తున్నాయి, మెసేజ్లు. అసలు మాత్రం వస్తలేదు. జర మీరు మాట్లాడాలి సార్ అని చెప్పి ప్రజలు మమ్మల్ని కోరుతున్నారు. తప్పకుండా ప్రతిపక్షంగా ఉన్నాం కాబట్టి మా బాధ్యత. అది కూడా మీలాగే చెత్తబాబు రావట్లేము. మేము ప్రభుత్వాన్ని సమయం చెప్పండి, రైతులకు ఎప్పుడు ఇస్తారో, ఆ రుణమాఫీ ఎప్పుడు చేస్తారో సమయం మాత్రమే చెప్పమని అడిగినాం తప్ప మీలాగా మేమేం రోత మాటలు మాట్లాడలేదు. ఎప్పుడు మాట్లాడడం కూడా మీరు ఎన్ని రెచ్చగొట్టినా మీ చేతగంతనం, మీ పరిపాలన చేయరాని మీ దండతనంతో ఏం చెత్తబాబు రాగినా మేము పద్ధతిని ఏమిటాం, పద్ధతిని అడుగుతాం. కరెంటు కొత్తల గురించి చెప్తున్నారు. పాపం మెయింటెనెన్స్ కొరకు మీరు అందరూ కూడా చూస్తున్నారు గత 10 సంవత్సరాలు. మెయింటెనెన్స్ కొరకు ఎక్కడైనా కాసేపు పవర్ తీసేయాల్సి వస్తే 1-2 గంటలో ఆ ప్రాంతం నుండి ఏఈ, ఇంకొంచెం పెద్ద పరిధి అయితే డిఈ సమాచారం ఇచ్చేటోడు అక్కడికి కన్జ్యూమర్స్కి. कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दाम में मसरूफ़ है। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने किशनबाग डिवीज़न के इलाके जात कोंडारेड्डी गुड़ा, सत्यानगर और अतराफ अकनाफ का दौरा करते हुए तातुल शुदा तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना किया। मजलिसी रुकन असम्बली के हमरा मुख्तलिफ महकमे जात, GHMC, बरक़ी और वाटर वर्क्स के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने ओहदेदारों को तातुल शुदा कामों की तकमील के लिए ज़रूरी हिदायतें भी दी। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा भी मौजूद थे। आज सदर मोहतरम नसीब मिलत अली जनाब अलहाज बैरिस्टर रसूद्दीन साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हिदायत के ऊपर हल्का असम्बली बहादुरपुरे के बल्दी डिवीज़न किशन बाग में कुंडल रेड्डी गुड़ा, मसूदिया मस्जिद, अल्लाह मस्जिद, सत्यानगर का मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा किया गया और यहाँ के मसाइल को आवाम से मुलाकात करके मसाइल को देखा गया है। कई जगहों के ऊपर पानी की शिकायत वसूल हुई और कई जगहों के ऊपर पाइप वाटर लाइन आकर पड़े हुए हैं, लेकिन वो काम नहीं हुआ है। हम GM साहब से फौरी इस काम के ताल्लुक़ से बताए और इमीडिएट उन्होंने करवाने का वादा किया है और जहाँ जहाँ पर भी पोल्यूशन आ रहा है उसको इमीडिएट रेक्टिफाई करने का लिए भी अहकामात को दिए गए हैं। ख़ास तौर से कोंडारेड्डी गुड़े के अंदर 2 मुकामात के ऊपर मिनहोल्स क्लॉप्स हो गए हैं, वो इमीडिएट आज की तारीख़ में उस मिनहोल को बनाने का GM साहब ने वादा किया और ख़ास तौर से हमारे GHMC के अहदेदारान भी यहाँ पर मौजूद है और
VDCC रोड्स के भी एस्टीमेट 5 फेज़ के अंदर लिए गए और 5-6 के सैंक्शन होना है। हम डिप्टी साहब और हमारे AE साहब यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी एस्टीमेट्स को निकालने के लिए कहा गया है। इमीडिएट उस कामों को भी लिए टेकअप किया जाएगा और यहाँ के जो भी मसाइल है हम आवाम से भी ख्वाहिश करते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त आपके मसाइल को हल करने के लिए दिन रात आपके महलों के अंदर हमारे इब्तिदाई मजलिस के सुदूर मुतमदीन हमारे कॉरपोरेटर्स आपके बीच में रहकर आपके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आपका भी काम है कि आप लोग जो भी मसाइल है हम हमारे कॉरपोरेटर्स हमारी इब्तिदाई के सुदूर मुतमदीन के इल्म में लेकर आइए। और आज के इस दौरे के अंदर इस इलाके के कॉरपोरेटर जनाब ख्वाजा मुबशिरुद्दीन हुसैनी पाशा साहब और GHMC के डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जनाब वेंकटेश्वर साहब, AE विजय भास्कर साहब और हमारे वाटर वर्क्स से GM जनाब कृष्णा साहब और मैनेजर श्रीनिवास साहब और दीगर तमाम अहदेदारान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के AE और हमारे इब्तिदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सुदूर मुतमदीन आज के इस दौरे में शामिल थे। मैं फिर एक बार आवाम से ख्वाहिश करता हूँ कि आप लोग आपके जो भी मसाइल है हमसे रुजू कीजिए। इंशाअल्लाह ताला इमीडिएट उन मसाइल को हल करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त आपके बीच में रहकर उन मसाइल को हल करने की कोशिश करेगी। हल्का असम्बली महेश्वरम में वाक़ वार्ड 3 नबील कॉलोनी का कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज अहमद बिन सालेह सादी और चेयरमैन जलपली म्यूनसिपल अब्दुल्ला सादी ने मजलिसी MLC मिर्ज़ा अहमद बेग के हमरा पैदल दौरा किया। वार्ड 3 की नबील कॉलोनी में तातुल शुदा कामों की तकमील के सिलसिले में अहदेदारों को तवज्जो मबजूल करवाई गई। इस मौके पर वार्ड 3 काउंसलर अहमद कसादी और दीगर भी मौजूद थे। सदर मोहतरम नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की हिदायत के ऊपर मैं जो महेश्वरम असम्बली एरिया के नबील कॉलोनी में आज सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर दौरा किया गया, जो कि आज से 4 महीने पहले सदर मोहतरम ने हुकूमत से नुमाइंदगी करके यहाँ पर नबील कॉलोनी का एक जो ड्रेन लाइन का मसला था, नाले का मसला था, उसमें तकरीबन 6 करोड़ की लागत से हुकूमत से नुमाइंदगी करके ये काम मंजूर करवाए और इसमें बड़े पैप आ रहे 1800 mm डाया बोले तो 6 फीट के पैप तकरीबन 215 मीटर तक वो लाइन डाली जाएगी। फिर वहाँ से 2 मीटर का नाला कंटिन्यू 650 मीटर डाला जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लागत 6 करोड़ रुपए है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम ने इस ताल्लुक़ से उस टाइम के रियासती वज़ीरा मैडम सविता इंद्रा रेड्डी मैडम से नुमाइंदगी करे और ख़ास तौर पर उस वक्त के म्युनिसिपल मिनिस्टर KT रामाराव साहब से नुमाइंदगी करके ये काम यहाँ पर आवाम को बहुत तकलीफ़ थी और बारहा यहाँ की आवाम सदर मोहतरम नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब से यही गुजारिश कर रहे थे कि साहब हमारे को ये कॉलोनी में बहुत तकलीफ़ हो रही है और पानी की वजह से कई घरों में पानी जमा हो जा रहा बारिश का बोल के, उसको मद्देनज़र रखते हुआ इसको पूरा इरिगेशन डिपार्टमेंट से इसके इंस्ट्रूमेंट्स बनाकर आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर आने का मकसद एक ही है, चंद दिनों में यहाँ पर काम चालू होने वाला है और कंट्रैक्टर को भी ये काम अलाट हो चुका है। और मैं यहाँ की आवाम से यही बोलना चाहता हूँ कि आपके जो ये मसला था, बहुत बड़ा मसला था आपकी कॉलोनी का, यहाँ पर नाले का और बड़ी ड्रेन लाइन का, और सदर मोहतरम ने अपनी नुमाइंदगी के ऊपर ये काम को करवा रहे हैं। तो मैं इस मौके के ऊपर हमारे यहाँ के चेयरमैन और हमारे अहमद सादी साहब और तमाम मंजिस के ज़िम्मेदारान और यहाँ के कॉरपोरेटर्स सबको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग आवाम के दरमियान
जलपल्ली म्यूनसिपलिटी वार्ड नंबर 25 न्यू मोहम्मद नगर में 50 लाख रुपए लागती अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइन के कामों का जलपल्ली म्यूनसिपलिटी चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी और नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद असद ने तफसीली मुआयना किया। मुकामी अवाम ने म्यूनसिपलिटी चेयरमैन का खैर मकदम करते हुए उनकी गुलपोशी भी की। इस मौके पर मुकामी कायदीन भी मौजूद थे। मैं न्यू मोहम्मद नगर का इब्तदाई सदर हूँ और हमारे अब्दुल्ला साहब, हमारे चेयरमैन साहब और अहमद सादी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे मैडम सबिता दरबी साहब का, जो हम लोग जाके जो 50 लाख का जो सेंक्शन लाए हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला भाई हमारे बहुत कोशिश करें अल्हम्दुलिल्लाह, आगे भी इंशाल्लाह हम बहुत काम वालेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन साहब की कोशिशों से जो है तो 50 लाख का काम सेंक्शन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को 2 साल से बहुत तकलीफ थी हमारे एरिया में। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह एक महीने भर में तकलीफ दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे चेयरमैन साहब जलपल्ली म्यूनसिपालिटी अब्दुल्ला सादी साहब आए हैं और वर्क इनाग्रेशन करने के। ये 50 लाख का वर्क है। ये वर्क बजट सैंक्शन करने के लिए बहुत कोशिश से जो से कि चेयरमैन साहब सैंक्शन करा के हमारे जो से प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए उन्होंने जो से कि बहुत कोशिश करके ये ड्रेनेज लाइन डला रहे हैं। हमारे पूरे कॉलोनी वालों का बहुत बहुत धन्य शुक्रिया उनका आसिफ साहब का। जब तक हमारे जिस्म में रूह है हम ऐसे डिमांड करते रहते, चेयरमैन साहब सैंक्शन करते रहते। हम जब तक है हम ये एमएम पार्टी का सपोर्ट करते हुए इस कॉलोनी में रहते हैं। हम ज़रूर हम नेक्स्ट टाइम भी जो सके एमएम पार्टी को जिताएंगे। हैदराबाद के नीलगेट पुलिस स्टेशन हुदूद में राम के नाम फिल्म की स्क्रीनिंग विश्व हिंदू परिषद के एहतजाज के बाद रोक दी गई है। ज़राए के मुताबिक आनंद पटवर्धन की इस दस्तावेजी फिल्म को दिखाया जा रहा था, ताहम वीएचपी के लोग मुकाम वाक़े पर पहुंच गए और पुलिस को इत्तला दी गई। इस सिलसिले में 3 लोगों को तहवील में भी लिया गया है। मेरा नाम अकील है। Okay. So go and find this. So don't say that it's illegal. It's on YouTube. अरे भाई this is illegal. What are you doing? This is illegal. You can find it. See, hurting a religious is illegal. It is a crime, right? Illegal or illegal, a crime. You are intentionally, you people are intentionally wantedly, you are creating communal harmony in this place, right? You are intentionally. I will tell you. I'll tell. Right? I'll tell. हैदराबाद के दिलसुख नगर आरटीसी डिपो में सुबह के अवलीन सातों में 2 बसें पुरस्कार तौर पर आग लगने से जलकर खाकस्तर हो गई। तफसीलात के मुताबिक आग के फैलते ही अफरा तफरी देखी गई। फौरी फायर इंजन्स को तलब किया गया और काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया, ताहम मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही है।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हलकों में रमज़ान मुबारक से कबल तमाम इंतज़ामात को ख़तियत देने में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत हल्के असम्बली नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने हल्के के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में वाक़ क़ब्रस्तानों का दौरा करते हुए शब बारात से कबल किए जाने वाले इंतज़ामात का जायज़ा लिया। उन्होंने अहदेदारों को तवज्जो दिलाई कि क़ब्रस्तानों को ज़ियारत क़बूल के लिए आने वालों को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना होने पाए। इस मौके पर उनके हमरा मुतालिका कॉरपोरेटर्स, GHMC अहदेदार और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। शब मिराज, शब बारात, शब क़दर और आने वाले रमज़ान मुबारक को मद्देनज़र रखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तमाम क़ब्रस्तानों की साफ़ सफाई और मस्जिदों के अतराफ़ और अकनाफ़ के इलाक़ों की साफ़ सफाई और मेंटेनेंस वर्क और जो भी रमज़ान में जो भी मस्जिदों के जो छोटे मोटे तामीराती काम है उसको मद्देनज़र रखते हुए आज मैं मेरे साथ मुकामी कॉरपोरेटर हज़रात ज़फ़र भाई साहब, सरफराज भाई साहब, मूसा भाई साहब, आरिफ भाई साहब, कासिम भाई साहब, तमाम दीगर मजलिसी कायदीन और हर एक क़ब्रस्तान के सदर और वहाँ के कमेटी मेंबर्स ने हमने आज आसिफ नामपल्ली हल्के के कई क़ब्रस्तानों का दौरा किया और वहाँ पे कंसर्न महकमों को हिदायत दी कि क्या क्या काम करना है। शब बारात को नज़र में रखते हुए मस्जिद गुम्बज़ के क़ब्रस्तान, चाहे वो मुराद शाह धोती का क़ब्रस्तान हो या संतोष नगर का क़ब्रस्तान हो या ख्वाजा अली पीर और हाजी अली पीर क़ब्रस्तान हो महबूब कॉलोनी में, मस्जिद मोहम्मदिया ग्रेवयार्ड, अमलापुर ग्रेवयार्ड तालागड्डा में, आसार शरीफ ग्रेवयार्ड तालागड्डा में, सुल्तान बाबा ग्रेवयार्ड मारुति नगर में, जामे मस्जिद कुलसुम बेगम तालागड्डा का ग्रेवयार्ड और मुराद शाह धोती रहमतुल्लाह अलैह का ग्रेवयार्ड, सलमान फारसी मस्जिद वाले जाही का ग्रेवयार्ड, मस्जिद वाले जाही 2 का ग्रेवयार्ड, मस्जिद वाला जाही 3 का ग्रेवयार्ड, मस्जिद खादरिया, पीर पाशा देवड़ी, गंज शहीदा दरगाह, मस्जिद अहले बैत और अंजुमन का ग्रेवयार्ड, कुतुब शाही का ग्रेवयार्ड और कई ऐसे जो ग्रेवयार्ड्स तमाम नामपल्ली हल्के में आते हैं और मसाजिद नामपल्ली हल्के में आते हैं। यहाँ के तरक्याती कामों को फौरी तौर पे हम इसका एस्टिमेशन तैयार करेंगे और हम ये इंशाल्लाह पुरज़ोर कोशिश करेंगे कि आने वाले ये जो शब बारात है उसमें जो हाज़रीन क़ब्रस्तानों को आते हैं, मसाजिद को आते हैं और रमज़ान मुबारक में जो मसाजिद की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा मुसल्ली आते हैं, इनको हम हमारे तरफ से बेहतर सहूलत देने की कोशिश करें। इस सिलसिले में हम तमाम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम मस्जिद कमेटी और क़ब्रस्तान कमेटी के ज़िम्मेदारों से बात करें और उनका मुतालबा समझते हुए उनके मुतालबे पे और उनकी ज़रूरियात के हिसाब से वहाँ पे काम कर सकें। इंशाअल्लाह यहाँ पे जब शब बारात आएगी तो तमाम स्वीपिंग के अहदेदारों को ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि तमाम क़ब्रस्तानों को क्लीन किया जाएगा। इंजीनियरिंग विंग की तरफ से तमाम ग्रास कटिंग की जाएगी, वाइट वॉश किया जाएगा, जहाँ पे टाइल्स का काम है वो टाइल्स का काम किया जाएगा और सदर मजलिस की ख़ास हिदायत है कि ये जो काम है ये जल्द से जल्द मुकम्मल हो, क्योंकि आने वाले 15 या 20 दिन या 1 महीने में शायद हो सकता है इलेक्शन कोड हो। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले से तैयार है और हम इंशाल्लाह रमज़ान के काम भी इन 15-20 दिनों में सैंक्शन लेते हुए मुसल्लियों को और जो लोग क़ब्रस्तान को आते हैं, मसाजिद को आते हैं, उनको तकलीफ़ ना हो और उनकी सहूलत के लिए हम पहले से तैयार रहेंगे और इंशाल्लाह मुकम्मल काम रमज़ान से पहले मुकम्मल करेंगे। नामपल्ली असम्बली हल्के में मजलिस की जानिब से और न्यू डायमंड NGO के इश्तराक से 2 ट्रेनिंग सेंटर्स का आगाज़ किया गया, जिनमें ख़वातीन और लड़कियों को सीविंग के अलावा ब्यूटिशियन कोर्सेज़ की तरबियत दी जा रही है। मजलिसी रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने मज़कूरा सेंटर्स का तफसीली मुआयना किया और तफसीलात भी हासिल की। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली ने लड़कियों और ख़वातीन से अपील की कि वो इन सेंटर्स से इस्तेफ़ादा करें। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और न्यू डायमंड NGO के जानिब से 2 स्विंग सेंटर्स नामपल्ली हल्के में खोले गए, ख़ास तौर से मल्लापल्ली हल्के में खोले गए। एक स्विंग सेंटर ट्रेनिंग सेंटर होगा ज़ाकिर हुसैन कमेटी हॉल में और दूसरा अपने हबीब नगर अवेसी कमेटी हॉल में। और यहाँ पे हमने कोशिश ये कर रहे हैं कि जो ख़वातीन हैं वो यहाँ पर आकर अपनी स्विमिंग ट्रेनिंग और ब्यूटिशियन ट्रेनिंग यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। हम एक कोशिश में लगे हुए हैं कि ख़वातीन को भी ट्रेनिंग दे सकें ताकि वो अपने रोज़गार पे लग सके और ऐसे छोटे मोटे हुनर उनके भी हाथ में आ सके जिनसे उनको फ़ायदा हो सके। पहले जो अवेसी कमेटी हॉल का जो ट्रेनिंग सेंटर का इनाग्रेशन यहाँ के मुकामी कॉरपोरेटर ज़फ़र साहब के हाथों से हुआ
और दूसरा जो जाकिर हुसैन कमेटी हॉल का जो इनॉग्रेशन है, यहाँ के इब्तदाई सदर मुतमदीन जो जावेद साहब है और सलमान साहब के हाथों से यहाँ पे दूसरे सेंटर का इफ्तिताह किया गया। इंशाल्लाह ऐसी ट्रेनिंग सेंटर्स हम दूसरे हलकों में भी स्टार्ट करेंगे ताकि हमारी जो ख़वातीन बहनें हैं वो यहाँ पर आकर अपने आप एक हुनर सीख सकें और उनकी मदद भी करेंगे आगे उनको रोज़गार के लिए। मैं या नामपल्ली हलके के तमाम मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि इन 2 सेंटरों से राब्ते में आएँ। लिमिटेड बैचेस होंगे तो पहले बैच में रजिस्टर करने की कोशिश करें, जैसा बैच ख़त्म होगा दूसरे में रजिस्टर करने की कोशिश करें और अपने आप को इन ट्रेनिंगों से फ़ायदा हासिल कर सकें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो वादा किया है आपके रोज़गार के लिए, उसके लिए हम कमिटेड हैं और इंशाअल्लाह हम ऐसे और ट्रेनिंग सेंटर्स हर डिवीज़न में जल्द से जल्द सदर मजलिस की निगरानी में खोलेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने मासाब टैंक में वाक़ सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल पहुंचकर दवाखाने की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने आरओमे से दवाखाने के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तफसीलात तलब की, जबकि मरीज़ों से मुलाकात करते हुए हॉस्पिटल में दी जा रही सहूलियात के बारे में मालूमात भी हासिल की। उनके हमरा मजलिस डिवीज़न कॉरपोरेटर सरफराज सिद्दीकी के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। बाद अज़ां कॉरपोरेटर और आरएमओ ने मीडिया को तफसील बताई। जैसा कि आज मुअज़्ज़ज़ रुकन असम्बली हल्का नामपल्ली जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन साहब ने हमारे इस इलाके के बड़ा हॉस्पिटल जाने जाने वाला सरोजनी हॉस्पिटल में डिटेल में इंस्पेक्शन और विज़िट किया और यहाँ के सुप्रिटेंडेंट साहब से, आरएमओ से, स्टाफ से मुलाकात की और फ़र्दन यहाँ के पेशेंट्स मरीज़ों से मुलाकात कर यहाँ के सहूलतों के बारे में मालूमात हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह एमएलए साहब ने इस हॉस्पिटल के लिए जो और भी होने वाले डेवलपमेंट वर्क्स है, चाहे वो इक्विपमेंट के बारे में हो, चाहे साइंटिफिकली जो तमाम चीज़ें जिस तरीके से दौरे में हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब ने एमएलए साहब के सामने तफसीलात रखी, तो एमएलए साहब ने तयक़ुन दिया कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये तमाम कामें हम हमारे रिप्रेजेंटेशन पे जमात की नुमाइंदगी पर हुकूमत तेलंगाना से नुमाइंदगी कर ये तमाम सहूलतें पहुँचाने का काम करने का वायदा भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सैकड़ों पेशेंट्स आते हैं और यहाँ से इलाज से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। इसमें और भी अच्छे क्वालिटी सर्विस के लिए हमारे एमएलए साहब ने हर हॉस्पिटल्स का दौरा कर रहे हैं, जैसा कि हाल ही में नामपल्ली का भी दौरा किए, दूसरे हॉस्पिटल्स का भी दौरा किए। एजुकेशन लेवल पर भी काम हो रहा, तालीमी लेवल पे काम हो रहा, हॉस्पिटल्स लेवल पे काम हो रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उस पर आज सरोजनी हॉस्पिटल आए हुए थे और इंशाअल्लाह आज एक दो दिन के अंदर सुप्रिटेंडेंट साहब ने वायदा किया कि इस हॉस्पिटल से जुड़े तमाम जो भी चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह एक रिप्रेजेंटेशन की शक्ल में एमएलए साहब के सामने रखेंगे और इंशाअल्लाह हमारे पार्टी सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में हुकूमत तेलंगाना से एमएलए साहब जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन साहब नुमाइंदगी कर वो तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह सैंक्शन करेंगे। और आज के इस दौरे में अल्हम्दुलिल्लाह एमएलए साहब के हमरा मैं खुद भी इलाके का कॉरपोरेटर और पार्टी के तमाम ज़िम्मेदारान, सुदूर मुतमदीन और भी बहुत सारे लोग इस दौरे में इस इंस्पेक्शन में साथ थे। और एमएलए साहब ने ये भी तयक़ुन दिया कि इंशाअल्लाह हर महीना इसी तरीके से इंस्पेक्शन करते रहेंगे ताकि जो भी चीज़ें हैं वो उनके इल्म में रहें। अगर जहाँ पर कुछ गैप्स वगैरह है तो फुलफ़िल करने में आसानी होगी इंशाअल्लाह। और भी मज़ीद इस हॉस्पिटल से रिलेटेड तफसीलात इंशाअल्लाह हमारे यहाँ पर सुप्रिटेंडेंट साहब सरोजनी हॉस्पिटल के टैलेंट हब क्रिकेट एकेडमी वाक़ रियाद सऊदी अरब की जानिब से शार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जर्सी डिस्ट्रीब्यूशन तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। रूबी न्यूज़ के नुमाइंदे बासित अबू मुआज़ के मुताबिक मोहम्मद कबीर खान डायरेक्टर क्रिकेट सऊदी अरब और हनीफ बाबर प्रेसिडेंट रियाज क्रिकेट लीग ने मेहमानान के हिस्से से शिरकत की। वाज़ेह है कि इस एकेडमी के सरबराह इब्राहिम खान है, जबकि मोहम्मद इमरान सीनियर कोच और मोहम्मद वजाहत हुसैन एकेडमी के असिस्टेंट कोच हैं। इसी तर्ज पर आमिना खान
اکیڈمی کی اسسٹنٹ مینیجر ہیں اور سہیل حیدر خاصی جونیئر کوچ ہیں۔ اکیڈمی سے وابستہ کھلاڑیوں میں جرسی تقسیم کی گئی، جبکہ باسط ابو معاذ نے ذمہ داران سے تفصیلی بات بھی کی۔ السلام علیکم ناظرین، میں جرنلسٹ باسط ابو معاذ، ریاض سعودی عربیہ سے۔ ریاض میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے ماشاء اللہ سے، اور آج جو ایونٹ ہے ہمارے اسپورٹس کے متعلق، تو آج جو ایونٹ ہے اس کے متعلق ہمارے اسپورٹس مینیجر ہے آپ آمنہ خان، اور ہم بات کریں گے ان سے۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں آپ کا خیر تو آج جو ایونٹ ہے اس کے بارے میں جی، یہاں پہ گرلس کرکٹ ابھی شروع ہوئی ہے، اور اس کے لیے مسٹر عمران اور مسٹر ابراہیم نے ایک ٹیلیفائڈ کرکٹ اکیڈمی کے نام سے اکیڈمی اسٹارٹ کی ہے۔ اس میں بچیاں اور بچے پریکٹس کے لیے آتے ہیں، اور ہم بہت اس میں ہماری پارٹیسپیشن بچوں کی بہت اچھی ہے، اور وہ بہت زیادہ خوش ہیں کہ یہاں پہ کیونکہ کرکٹ کے مواقع کم ہوتے تھے، لیکن اب اس اکیڈمی کی وجہ سے انہیں یہ پریکٹس کرنے کا موقع ملے گا۔ ان کی اچھی کوچنگ ہوتی ہے اور بچیاں اس لحاظ سے بہت خوش ہیں، اور انشاءاللہ جلد ہم ایک بہت اچھی ٹیم بھی اپنی لے کر آئیں گے۔ تو ہم بہت وہ ہیں اس کے لیے کہ یہ اکیڈمی بہت ترقی کرے اور بچیاں اور بچے اسی طرح اس میں شمولیت اختیار کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ کو تو جیسے معلوم ہے کہ کرکٹ پاکستان اور انڈینس کے لیے بہت ہی ایک میجر گیم ہے ہم سب کے لیے، اور ہماری بچیاں بھی اس چیز میں آگے آنا چاہتی ہیں، اور سعودیہ میں اب اس قسم کی اپرچونیٹیز آ رہی ہیں جس میں ہماری بچوں کو بہت سارے مواقع ملیں گے، اور انشاءاللہ ہم ایک بہت اچھی ٹیم لے کر سامنے آئیں گے۔ محمد عمران ہے، تو میں انڈیا حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں لیول 2 کوچ ہوں ICC سے یہاں پر، یہ ہماری اکیڈمی ٹیلنٹ ہے کرکٹ اکیڈمی۔ آج کی جرسی ڈسٹریبیوشن تھی ہماری یہاں پر، جو خان صاحب ہیڈ کوچ آئے ہوئے تھے یہاں پر۔ ماشاء اللہ میں شکر گزار ہوں سعودی کرکٹ فیڈریشن کا، جو اتنے سارے فیسلٹی جو سے فراہم کری سعودی کرکٹ فیڈریشن، اور حبیب صاحب کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں میں، بچوں کو آگے بڑھنے کا موقع مل رہا ہے یہاں پر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہر ایج کے لڑکے اور لڑکیاں، ہر ایج کے جیسے لڑکے لڑکیاں جو آپ کو ملیں گے، تو ہم لوگ گراس روٹ ڈیولپمنٹ پروگرام چلا رہے ہیں یہاں پر، جو انڈر 8 انڈر 10 کے جو لڑکے ہیں، تو ہمارے پاس انڈر 16 انڈر 19 3 سے 15 تو ان شاء اللہ اللہ کا ماشاء اللہ بہت بہترین پروگرام ہوا آج۔ ابھی تو سعودی فیڈریشن کی طرف سے، سعودی کرکٹ کی طرف سے کافی ایک اچھی اپارچونیٹی ہے ینگ بچوں کے لیے۔ ملٹیپل جیسے لوگ کے جیسے ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں، ریاض کرکٹ لیگ ہے، RC ہے، ریاض کرکٹ ایسوسیٹس ہے، اور ویمنس کرکٹ ٹیلنٹ گرلس کے لیے جیسے ایک ٹورنامنٹ جیسے وہ لوگ لانچ کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو سو بچوں کے لیے انڈر 16 انڈر 19 اور انڈر 14 کے لیے جو سو سلیکشنس وغیرہ ہو رہے ہیں۔ تو کرکٹ کافی آگے بڑھ رہی ہے ابھی سعودی، یہ سمجھیے کہ آپ سعودی عرب میں۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی ڈائیورس دورے سے حیدرآباد واپس، کروڑوں روپے بیرونی سرمایہ کاری کو یقینی بنانے کا دعویٰ۔ تلنگانہ خانساز کونسل کی 2 نشستوں پر کانگریس امیدوار بلا مقابلہ منتخب، مہیش کمار گوڑ اور بی وینکٹ نئے MLC۔ BRS وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے خوف کھانے والی جماعت نہیں، کارگزار صدر BRS KTR کا تلنگانہ بھون میں خطاب۔ مجلسی اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے لیے اقدامات میں مصروف، متعلقہ علاقوں کے پیدل دورے، تعطل شدہ کاموں کو تکمیل کرنے عہدیداروں کو دی ہدایت۔ شہر میں 2 مقامات پر آتی زدگی حادثات، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، متعلقہ پولیس نے کی ضابطے کی کارروائی۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔